Hello friends, myself Mr. Sagar Tukaram Kadlak from Gokhale Education Society's Arts, Commerce and Science College, Jawhar. Today in this video we are going to study about the structure of lungs in human. This is the topic from SYBSC Zoology paper 2nd, semester 3, unit number 2. In human, the respiratory system consists of a respiratory tract and a respiratory organ situated in the thoracic cavity. So, ह्यूमंस में जो लंग्स है वो thoracic cavity में प्रेजेंट होते हैं. इट इज़ covered by a membrane and a hard covering of ribs. The respiratory system consists nose, pharynx, larynx, trachea, bronchi and lungs. So one by one we will discuss the point or the parts of the respiratory system. Nose externally has a pair of opening called nostril leads to the opening of nasal cavity. एक्सटर्नली जो नोज़ होता है वो ओपनिंग होता है टू नॉस्ट्रिल से, कि जो वहाँ से एयर ड्रॉन करता है इनसाइड. इट लीड्स और इट ओपन्स इनटू द नेसल कैविटी. इंटरनल जो नोज़ है या फिर नेसल कैविटी उसको बोलते हैं, तो वहाँ पे वो कंटिन्यू होता है. द नेसल चेम्बर और द नेसल कैविटी is differentiated into two chamber by nasal septum. अंदर एक कैविटी वहाँ पे बनती है जो उसको दो चैम्बर्स में डिवाइड करते हैं, और वो डिवाइडेशन जो है वो नेसल सेप्टम के थ्रू होता है. ओके. द एंटीरियर मोस्ट रीजन इज द वेस्टिबुलर रीजन and it is lined by hair which helps to remove dust and prevents the entry of foreign particles from the air. जो एंटीरियर मतलब आगे की तरफ का जो पोर्शन होता है वहाँ पे हेयर्स होते हैं और वो डस्ट या फिर फॉरेन पार्टिकल जो है उनकी एंट्री वहाँ पे अवॉइड करता है. द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड एज or the respiratory region is also called as the air conditioning chamber where it works as it warms the air which is going inside the respiratory system or respiratory tract, and it also moisten it with the air, and humidity filters the particles from the air. It also acts as the olfactory stimuli are received in this chamber or in this cavity. Means there are a smell sensation received by the particular cavity or the nasal cavity. It is large, hollow and resonating chamber where the स्पीच साउंड इज गेट मॉडिफाइड. तो ये नेसल कैविटी के तीन मेजर फंक्शन वहाँ पे है. दैट इज इट वार्म्स द एयर, मॉइस्चर द एयर एंड फिल्टर द पार्टिकल्स फ्रॉम द एयर और फिल्टर्स द फॉरेन पार्टिकल्स coming with the air. It also acts as a olfactory stimulus, or we can call it as the smell sensation. Then also act as a resonating chamber where the speech sound get modified. Then second one is the pharynx. Pharynx is a funnel shaped tube, starts from the internal ear and extend up to the last cartilage of the larynx. एक फनेल शेप ट्यूब वहाँ पे स्टार्ट होती है नियर्स से शुरू होके और अप टू द लार्निक्स रीजन तक वो कंटिन्यू होती है.
The wall of pharynx is lined by a mucous membrane which functions as a passage for food and air. So it is a common passage for food and air. It has a slit like aperture called glottis, and this is anteriorly located in the pharynx, which is raised, or on rising it forms epiglottis, which is a cartilaginous in structure. This epiglottis can be folded back to close the glottis and prevents food from entering into the passage of a lung. So जो glottis रीजन है वो वहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्लीट लाइक एपर्चर वहाँ पे उसका होता है, और वो फॉर्म करता है epiglottis जो कि राइज होके बनता है glottis रीजन के, and it is a cartilaginous in a structure. It prevents the food going into the lung or respiratory tract. ये वहाँ पे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक में फूड का अगर वहाँ पे पार्टिकल या फिर बोलस वहाँ पे माइग्रेशन मूवमेंट कर रहा होगा तो उसका एंट्री वहाँ पे वो प्रिवेंट करता है गोइंग इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक. देन द लार्ynx रीजन, इट इज small thin walled tubular region containing vocal cord, and that's why it called as the voice box of the human or the respiratory system. It is supported by a cartilage tissue, one from the thyroid and second or two from the arytenoid rings. So ये जो लार्ynx रीजन है तो वो कार्टिलेजेस जो रिंग्स है उससे प्रोटेक्टेड है, वन फ्रॉम थायराइड एंड टू फ्रॉम एरिटिनॉइड्स रिंग. दिस प्रिवेंट्स और दिस कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रिवेंट द वॉल फ्रॉम कोलैप्सिंग. जो लारिंग्स का वॉल है, ट्यूब्स है, वो कोलैप्स होने से वो वहाँ पे अवॉइड करती है या फिर उसको सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से वो कोलैप्स नहीं होती. इन male, larynx increase in the size and become larger than the female. मेल्स में ये जो larynx रीजन है वो इंक्रीज हो जाता है इन अडल्ट स्टेज and become a larger than the female. So it is a particular a characteristic of male which differentiate from the female कि जो वहाँ पे जो मेल वॉइस है या फिर ब्रॉडर वॉइस है रादर दैन द फीमेल, वो वहाँ पे प्रोड्यूस करने का या फिर डिफ्रेंशिएट करने का ये लैरेंस का फंक्शन है, और वो वहाँ पे अडल्ट स्टेज में वहाँ से होता है. द एनलार्ज वोकल कॉर्ड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लोअर पिच ऑफ मस्कुलिन वॉइस. सो जो वोकल कॉर्ड है उसका जो एनलार्जमेंट होना है वो वहाँ पे जो मस्कुलिन वॉइस है या फिर जो मेल का वॉइस है वहाँ पे वो मॉडिफाइड होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है, दिस इज अ लार्ynx रीजन. देन अ ट्रकिया. नाउ दिस ट्रकिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज द विंड पाइप. It is about 11 centimeter long and guarded by 60 to 20 C-shaped cartilaginous ring. The trachea or the tracheal wall is lined by ciliated epithelium with goblet cell. इसके जो वॉल है वहाँ पे ciliated epithelium mucus secreting cells present होते हैं, which helps to expel dust and food particles, bacteria etc. foreign material which is get trapped in the म्यूकस. सो जो सिलेटेड इपिथेलियम सेल्स है वो जो ट्रैप फॉरेन पार्टिकल्स है एयर से या एंट्री करते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक में, उसको वो सिलिया वहाँ पे बाहर की तरफ निकालने में हेल्प करती है. सो दिस इज़ द ट्रकिया. देन नेक्स्ट वन इज़ द ब्रोंकाई. इट इज़ कंटिन्यू फ्रॉम द ट्रकिया और नेक्स्ट टू द ट्रकिया. It get divides
into right and left primary bronchus. जैसे ही ट्रकिया ख़त्म होता है वहाँ पे ब्रोंकाई स्टार्ट होता है और जो ब्रोंकाई है वो वहाँ से डिफ्रेंशिएट होता है और डिवाइड होता है लेफ्ट एंड राइट रीजन में। दो अलग अलग वहाँ पे विंड पाइप फॉर्म होते हैं और वो लेफ्ट एंड राइट जो लंग्स है वहाँ रिस्पेक्टिव एरिया में वो एंटर करते हैं। द राइट ब्रोंकस or the right windpipe is wider, shorter and more vertically placed than the left bronchus. Each bronchus divides and forms a secondary bronchus. जो ये विंड पाइप है वो आगे ट्रकिया जाके डिवाइड होता है ब्रोंकाई में। दो ब्रोंकाई वहाँ पे फॉर्म होते हैं लेफ्ट एंड राइट। देन दिस ईच ब्रोंकाई लेफ्ट एंड राइट गेट डिवाइड इनटू अनदर पार्ट्स और अनदर डिवीजन टू फॉर्म्स अ सेकेंडरी ब्रोंकाई। मतलब वो आगे कंटिन्यू डिवीजन उसकी लंग्स में एंट्री मारते होती है कि जो वहाँ पे सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्चरी ब्रोंकस एंड फाइनली द ब्रोंक्यूल्स वहाँ पे फॉर्म होते हैं। मतलब एक छोटे छोटे ट्यूब्स वहाँ पे डिवाइड होके फॉर्म होते हैं और जो लास्ट फाइन ट्यूब वहाँ पे फॉर्म होती है तो उसको ब्रोंक्यूल्स बोला जाता है या फिर ब्रोंक्यूल्स उनकी टर्म से which further branch into the terminal bronchioles. जो bronchioles फॉर्म होते हैं वो फाइनली स्मॉल टर्मिनल bronchioles फॉर्म करते हैं। दिस इज द एक्सटेंसिव ब्रांचिंग ऑफ bronchia which is termed as the or which referred as the bronchial tree. So this is the diagrammatic representation of divisions of bronchi. So from trachea it get divided into the two bronchi that called as the primary bronchioles or primary bronchus. Then it get again divided into the secondary bronchi and then continues to forms the bronchioles and terminal bronchi. आपको डायग्राम में वहाँ पे दिख रहा होगा कि टर्मिनल ब्रोंकाई जो है जो लास्ट रीजन तक वहाँ पे फॉर्म हुई है तो वो एकदम फाइन लेवल के ट्यूब्स वहाँ पे फॉर्म होते हैं, ओके, विच नेक्स्ट टू कनेक्टेड विद द अल्वियोला, ओके। देन द लंग्स आर स्पॉन्जी इलास्टिक सॉफ्ट ऑर्गन laying in the thoracic cavity formed by the ribs. जो लंग्स है वो सॉफ्ट इलास्टिक कंडीशन के होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं और थोरेसिक कैविटी में सिचुएटेड होते हैं कि जो थोरेसिक कैविटी रिब्स के फॉर्मेशन से बनी होती है। दे आर सेपरेटेड बाय हार्ट एंड अदर स्ट्रक्चर। जो दो लंग्स हैं वो सेपरेट होते हैं जिन दोनों के बीच में हार्ट, ईसोफेगस, थायराइड्स, ये ऐसे वहाँ पे जो ऑर्गन्स है वो लोकेटेड होते हैं जिन जो इन दोनों को सेपरेट करते हैं। देन द राइट लंग इज स्लाइटली थिकर, शॉर्टर एंड ब्रॉडर दैन द लेफ्ट वन। जो राइट वाला लंग है वो थोड़ा सा शॉर्ट, थिक, शॉर्टर होता है, ब्रॉडर होता है लेफ्ट वन के हिसाब से। दिस लंग्स are layered are having a two-layered sac called pleura surround and protect the lungs. The pleural sac or pleural membrane covers the both lungs, which protects the lung from the damaging, and it also covers which separate them from the other organs. Each lungs divide into the lobes by transverse and oblique grooves called the fissure. जो हर एक लंग है लेफ्ट एंड राइट उसको डिवीजन वहाँ पे देखने को मिलती है कि जो ट्रांसवर्स या ऑब्लिक ग्रूव्स की वजह से वहाँ पे फॉर्म होती है और उसको बोला जाता है फीचर। सो दिस इज अ डायग्राम ऑफ द bronchi and lungs of particular human being. So larynx, then a trachea, then primary bronchi
which is centrally located in the both lungs, upper side of the lungs. Then the right lung, which is shown here. Okay, so it has three sections, one called as the superior lobe, then second one called as the middle lobe, and the third one, the last, called as the inferior lobe. The pleural membrane covers the each or both left and right lung. The right one or the left lung in a diagram, which has two lobes called as the superior and inferior lobe, which is separated by the oblique fissure. Then the horizontal fissure, which is here in a right lung, and the oblique fissure is here in a left lung. Okay, so here in a left lung there is a small notch is there called as the cardiac notch, where it is near to the heart, or where the heart is very close. That's why this lung or this left lung forms a small little notch called as the cardiac notch. Then the left lung divided into two superior and inferior lobe. The right lung divided into three lobes, superior, middle and inferior lobe. Each lung having a bronchial tree in it. The pulmonary alveoli are tiny sacs characterized by a single layer membrane with a capillaries at the end. जो pulmonary alveoli है, या फिर हमने जो ब्रांकियल ट्री वहाँ पे देखी कि जो टर्मिनल ब्रांक्यूल्स वहाँ पे फॉर्म होते हैं, वो जो अल्वियोला है वहाँ पे वो फॉर्म करती है, और वो अल्वियोलाई आर tiny sacs, or we can call as the small air cavity or air sacs, where it is a single layered membrane which covered by the capillaries for the gaseous exchange. Each alveoli lined with squamous epithelium, and it is highly vascular and glandular. जो हर एक अल्वियोला है वो स्क्वैमस इपिथेलियम उससे लाइन होती है, वो हाईली वास्कुलर है, उसमें बहुत ज़्यादा कैपिलरी कनेक्शंस या फिर कैपिलरी नेटवर्क वहाँ पे होता है, एंड ग्लैंडुलर है, मतलब वहाँ पे ग्लैंड्स होते हैं कि जो म्यूकस उसमें सिक्रेट करते हैं, जिसकी वजह से उसमें अंदर की तरफ जो मॉइस्चर या फिर जो एक वाटरी कवर वहाँ पे होता है गैसेस डिफ्यूजन के लिए, वो कंटिन्यू मेंटेन रहता है. सो these are the bronchi and bronchial tree showing the particular respiratory structure and the alveoli at the fine level. ओके, सो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, ब्रांकियल ट्री है, लंग्स है, उसमें ऑब्लिक ट्रांसफ़र हॉरिजॉन्टल फीचर्स वहाँ पे नज़र आ रहे हैं, हर एक लोब्स जो लंग्स है उसके दिख रहे हैं, और जो अल्वियोला है वो वहाँ पे शोन की गई है, स्मॉल रीजन है एक छोटे से लोकेशन का, वो हाईलाइट किया गया है, मॉडिफाइड मैग्नीफाई किया है, और वो वहाँ पे आपको क्लियरली आइडिया देता है कि जो रेस्पायरेशन या फिर एट द एंड और एट द माइक्रो लेवल जो अल्वियोला है एंड टर्मिनल ब्रोंकियोल है, उनका जो लोकेशन है या फिर अरेंजमेंट है वो कैसे होता है. ओके, सो द अल्वियोलाई एंड ब्लड कैपिलरीज हैज़ अ थिकनेस अबाउट 0.5 माइक्रोन. जो कैपिलरीज एंड अल्वियोलाई का वॉल है तो उनके बीच में 0.5 माइक्रोन का डिस्टेंस होता है, विच अलाउज द इफिशियंस एक्सचेंज ऑफ गैसेस. तो वो वहाँ पे इतना फाइन डिस्टेंस उनमें होता है कि जो नहीं के बराबर है, और वहीं के और या फिर उसके लोकेशन से ही जो गैसेस एक्सचेंज है एक्चुअली फ्रॉम द एयर सैक और द अल्वियोलाई टू द
ब्लड इन अ कैपिलरीज वहाँ पे होता है. The 750 millions of alveoli are present in human lungs. Around 750 millions of alveoli humans के lungs में present होती है. And it covers the surface area exposed to air within the lungs is over 800 square feet. That is, it is more than 50 times ऑफ द स्किन सरफेस ऑफ द बॉडी. जो हमारी बॉडी है उसके ऊपर जो स्किन होती है तो उसका जो सरफेस एरिया है उससे 50 टाइम ग्रेटर ये अंदरूनी ये लंग्स का जो अल्वियोलाई रीजन है वो वहाँ पे सरफेस एरिया क्रिएट करते हैं या प्रोवाइड करते हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर of lungs in a human, that is the internal structure and the external structure of human lungs. Thank you.